Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the next topic of this unit number 14, biomolecules. The topic is called as what here? The Fischer projectional formula. What here? The question is asked in examination. Explain or define the Fischer projection formula of a glyceraldehyde or the glucose. So we take the question first. What is the Fischer projectional formula? So we take the question here first. The Fischer projection formula. Okay beta. Now this Fischer projection formula is defined as the tetrahedral carbon, represent the tetrahedral carbon represented by cross line called as, example this cross line called as what? Called as a Fischer projectional formula. Short form में F means Fischer, P means projection और F means formula. ठीक है बेटा. यानी जो ग्लूकोज या जो अल्डिहाइड या जो भी कंपाउंड है उसके कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो द कार्बन आर रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लाइन. So the tetrahedral carbon represented by the cross line, this called as the what? Fischer projection formula. For example, the structure of glyceraldehyde. So carbon attached to the oxygen here hydrogen, here the what here? The group that is called as what here? So we take the group here. Okay beta. OH here attached to the CHO and this CHO attached to CH2OH. So it is structure of what here? Structure of glyceraldehyde. Now it is the structural formula of glyceraldehyde. Now this structural formula are changed into what here? If we change this into the what here? The Fischer projection formula. So it write in the form this cross line. ऊपर जो देखा है CHO बेटा, नीचे यहाँ CH2OH है और इसके बाजू में क्या है बेटा? OH. It is called what here? The Fischer, short from F, P और F means what here? Fischer projectional formula. ठीक है बेटा. यानी किसी भी कार्बन का कैसे रिप्रेजेंट करें? द टेट्राल कार्बन आर represented or write by the what? Cross line called as what here? Fischer projectional formula. Example of this glyceraldehyde structure changed to what here? FPF means Fischer projectional formula. Example number second we take here what? How to change the structural formula of glucose into what here? The Fischer projection formula. So first of all, the glucose is a molecular formula C6H12O6. It's the molecular formula of what here? The glucose. ठीक है बेटा. Now if we write the structural formula, so we take the structural formula of glucose. ठीक है बेटा. So first the glucose has the how many carbon? 6 carbon. Number first, second, third, fourth, fifth and what here? 6. First molecule of the what here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon here. So first have the CHO group and the second have the OH, here the H, here the H, here the OH, here the OH, H attached to the what here? OH, H. It is the structural formula what here? The structure formula of glucose. Now this structural formula are changed into what here? The Fischer projection formula. Okay. So how to change? So we take here
Now this Fisher projection formula we write here. If we change the structure formula glucose into what? Fisher projection formula. So we take the cross line here first. How many carbon? 6 carbon. We take the first line, and second line we take the what here first. On the above side CHO. In the middle side what here? CH2OH. Remaining have the what? How many carbon? 4 carbon. Carbon number 1, 2. Okay. Then 3. Then 4. First have the OH. Here the H. Here the H. What here? OH. And 2 equal OH are attached. So it is called what here? The Fisher projectional formula of what here? ग्लूकोज. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं. सिंपल क्या रखना आपको, जितने कार्बन उसको क्रॉस लाइन है. इतने कार्बन कितने यहाँ पर, इसमें 4 कार्बन है तो 4 क्रॉस लाइन लिए 1 2 3 4. ठीक है. सो व्हाट इज फिशर फॉर्मूला हियर? इट इज डिफाइंड एज द टेट्राहेड्रल कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस लाइन कॉल्ड एज द फिशर पोजीशन फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आर चेंज इनटू व्हाट हियर? द फिशर पोजीशनल फार्मूला. ठीक है. इस तरीके से हम कोई भी कंपाउंड को बेटा फिशर पोजीशन फार्मूला निकाल सकती है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हियर. सो वी टेक द क्वेश्चन हियर. व्हाट क्वेश्चन वी टेक हियर? ओके. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज. ठीक है बेटा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. द कंडीशन इज दैट सो इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी टेक सम डिफरेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट वी टेक द chiral carbon. What here? Chiral carbon. So how many chiral carbon in glucose? So if you calculate the chiral carbon of glucose, it is the 4 chiral carbon. Carbon number first, this star line indicate the chiral carbon. Okay, so it contain of 4 glucose contain how many carbon? 4 chiral carbon. The chiral carbon is also called as what here beta? It is also called as asymmetrical carbon. What here? Asymmetrical carbon. ये याद रखो बेटा. ये डिफाइन 1 मास के लिए आप इससे पहले भी देखा हमने. यूनिट नंबर जो अपना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स या डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स एंड अल्कीन्स में देखा हमने व्हाट इज chiral कार्बन और asymmetrical कार्बन. सो इट इज डिफाइंड एज दोज कार्बन, इज एग्जांपल हियर, दोज कार्बन अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप हियर. सो इट इज कॉल्ड व्हाट हियर? द chiral कार्बन और asymmetrical कार्बन. यानी अगर किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करना है इसमें कितने chiral कार्बन है तो क्या देखना पड़ेगा? कार्बन की जो इन्वायरमेंट में कितने ग्रुप अटैच्ड है, और ग्रुप चारों भी अगर अपोजिट है, डिफरेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द व्हाट हियर? द chiral कार्बन. सो इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड हाउ मेनी chiral कार्बन? 1 chiral कार्बन. वेयर देन द ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी chiral कार्बन? 4 chiral कार्बन. नाउ if the any compound which contain at least 1 chiral carbon or asymmetrical carbon, this carbon or this compound are show the what? Optical isomerism in nature. ये condition है बेटा. So that's why glucose have the 4 chiral carbon. So it is show the optical isomerism in glucose or optical isomerism in nature. Now how many isomers in the glucose? Point number 2. So number of शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा हम लोग या फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2n. ये जब भी आप किसी भी कंपाउंड में कितने chiral कार्बन है वो देखते हैं और उसके बाद में उससे निकालते हैं आइसोमर. सो वी राइट द फार्मूला नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2n. n इंडिकेट नंबर ऑफ chiral कार्बन इन द कंपाउंड और asymmetrical व्हाट हियर? कार्बन. अब ग्लूकोज में देखते हैं हम, ग्लूकोज में कितने chiral कार्बन है? 4 है. तो इक्वल टू क्या आएगा? 2. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा? 2
और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो अगर 2 का 4 अगर इसका आंसर निकाल कितना निकलता है इसका आंसर इक्वल टू होता है 16 आइसोमर। हाउ मेनी? दैट्स वाई द ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी आइसोमर? 16 आइसोमर। ईच काral carbon shows how many 4 isomer equal to what here the 16 आइसोमर्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? नाउ द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है 2 टाइप्स। पहले क्या निकाला बेटा? कितने काral कार्बन है? काral कार्बन एक है, एक से ज़्यादा है तो वो कंपाउंड लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। बाद में निकाला आइसोमर कितने होते हैं, तो आइसोमर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n है। नंबर ऑफ काral कार्बन 6, आंसर कितना है? 16 आइसोमर्स ग्लूकोज शो करता है। अब हाउ मेनी आइसोमरिज्म इन द ग्लूकोज और हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन द ग्लूकोज? तो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हैव 2 टाइप्स क्लियरली। फर्स्ट कॉल्ड इज द व्हाट हियर? द डेक्स्ट्रो आइसोमर एंड द सेकंड इज कॉल्ड लियो आइसोमर। व्हाट हियर? द डेक्स्ट्रो आइसोमर एंड लियो आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके पॉइंट डील करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है बेटा? पहले क्या स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे याद रखो बेटा टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है बेटा, तो उसको यहाँ डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो पॉइंट नंबर ए वी टेक हियर द व्हाट? द डेक्स्ट्रो DEXTRO डेक्स्ट्रो आइसोमर। नंबर 2 और नंबर व्हाट वी टेक हियर? B लियो आइसोमर। शॉर्ट फॉर्म वी टेक द L आइसोमर। व्हाट हियर? L आइसोमर। इट्स कॉल्ड व्हाट हियर? इट्स आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर बेटा? D आइसोमर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेक्स्ट्रो आइसोमर? It means the optical isomerism have 2 type, डेक्स्ट्रो आइसोमर एंड लियो आइसोमर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं हम। व्हाट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर? इट इज डिफाइंड एज द एनी हाइड्रोक्सी ग्रुप विच हाइड्रोक्सी ग्रुप एटलीस्ट कंटेन काral कार्बन। ये काral कार्बन है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखो बेटा कार्बन अगर एक है तो अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है सो एनी कंपाउंड और द मॉलिक्यूल विच हैव द काral कार्बन and this काral carbon the OH attached to the right side, that's why it is called what here? The name is called what here? D isomer। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? D आइसोमर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? D आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में 4 कार्बन है, सो विच कार्बन विल बी असाइन हियर और आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। सो दोज कार्बन विच हैव द लोएस्ट इन नंबर एंड दैट वी द OH इज अटैच्ड टू द राइट साइड। अब लोएस्ट में कौन सा है? इससे कार्बन नंबर फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, 4 दिया, 5 दिया। ठीक है, तो 5 लोएस्ट है तो लोएस्ट वाली ये देखना है आपको लोएस्ट वाला। सो द एनी मॉलिक्यूल इन विच द OH ग्रुप अटैच टू द राइट साइड ऑफ द लोएस्ट काral कार्बन। लोएस्ट मतलब 5 नंबर वाला ही। तो यहाँ OH है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? इसका नेम क्या आएगा? इसका नेम आएगा D। व्हाट है D? व्हाट D इंडिकेट? D ग्लूकोज या D आइसोमर। D आइसोमर्स। ठीक है, D आइसोमर और आइसोमर का नाम क्या है? D ग्लूकोज आइसोमर। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम क्या है? D आइसोमर या डेक्स्ट्रो आइसोमर। अब अगर इसको रिवर्स लेते बेटा, यानी OH अगर यहाँ पर है तो सेकंड टॉपिक क्या आता हमारा? लियो आइसोमर। सो इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू द एनी काral कार्बन ऑन द लेफ्ट साइड। फिर डेक्स्ट्रो कॉल्ड इज व्हाट? आल्सो कॉल्ड इज व्हाट हियर? राइट साइड एंड लियो इज आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर? लेफ्ट साइड। ये भी याद रखो। सो डेक्स्ट्रो राइट साइड के लिए D लिखते हैं हम लोग और लियो के लिए लेफ्ट याद रखना है। अगर इसका उल्टा है बेटा, उल्टा मतलब अगर OH यहाँ पर है, ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे हमने H लिया। ठीक है बेटा, अब अगर एग्जाम्पल चेंज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने, देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CHO। ठीक है, CHOH और नीचे उसके व्हाट वी टेक द ग्रुप हियर? CH2OH अगर है, अब OH कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है, तो एग्जाम का क्या बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग L आइसोमर। व्हाट वी टेक हियर? द L आइसोमर। और अगर लेफ्ट साइड में इसके लिए क्या लगता है? निगेटिव L निगेटिव आइसोमर बोलेंगे इसको हम लोग, निगेटिव L आइसोमर।
ठीक है। डी अगर OH अगर राइट में इसके बने प्लस डी आइसोमर्स, प्लस माइनस इज अ साइन ऑफ रोटेशन। इन OH अगर राइट साइड पे तो कैसे घूमेगा वो, इट्स विल बी रोटेट इन व्हाट डायरेक्शन, या क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा, तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर OH लेफ्ट में, इस OH यहाँ पे लेफ्ट में, या OH अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है और घूमते हैं तो कैसे घूमेगा वो, नेगेटिव में माइनस साइड है। इट्स अ रोटेशन, सिंबल ऑफ रोटेशन प्लस माइनस। तो अगर OH अगर राइट साइड पर एक लोएस्ट कार्बन कार्बन के तो चार्ज क्या आएगा, D और प्लस D आएगा, D प्लस ग्लूकोज या D प्लस आइसोमर। अगर चार्ज OH अगर लेफ्ट साइड पे है तो चार्ज क्या आएगा, L माइनस आइसोमर और L माइनस ग्लूकोज। ठीक है बेटा, इस तरह दो टाइप्स के आइसोमर होते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन आगे कि राइट डाउन द D प्लस स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर और राइट डाउन द L माइनस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट है ग्लूकोज, वो हम लोग कल देखेंगे। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर फिशर पोजीशन फार्मूला डिफाइन क्या होती है, उसकी एग्जांपल देखा, वो चेंज कैसे करते हैं उसको, ये देखा एग्जांपल दोनों की। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या, सो ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज कंपाउंड शो विच हैव द chiral कार्बन, स्पेशली ग्लूकोज कंटेन 4 chiral कार्बन, दैट्स व्हाई शो द ऑप्टिकल आइसोमर। Optical isomer identified by the help of the formula number of isomer, and the optical isomer have the two types of the glucose shows dextro and LEO. Dextro means what here, the D means the OH attached to the right side of the any chiral carbon called as the dextro, and LEO means the OH group attached to the left side of the any chiral carbon called as the LEO. ठीक है। अब डेक्स्ट्रो में सिंबल प्लस का आता है, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, ये घूमता है, और लेफ्ट मतलब लियो के अंदर जो OH है वो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो फर्स्ट का जो चार्ज क्या आता है, माइनस का आता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, राइट डाउन द व्हाट हियर द हाउ मेनी आइसोमर इन द ग्लूकोज, हाउ मेनी chiral कार्बन द ग्लूकोज, हाउ मेनी आइसोमर शो ऑप्टिकल आइसोमर आर ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो एंड लियो। तो डेक्स्ट्रो लियो क्या होती है, याद रखो बेटा। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड के आपको नेम और उनके स्ट्रक्चर पे याद रखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।